Yes, good morning. All right. So we would be starting a very important topic today, and that's going to be the last topic in the integrations. And let me first of all make a login to your account. So, just a minute. So the topic is OAuth authentication process. So far, we have understood like how we can create a web services using different forms of the HTTP methods. Like the first program, if I just go back. So the first program which we have created, the first web service rather, we have created was using the HTTP GET method, right? That was the very first thing. I guess this one, yes, this one, yeah, this one. See, so we first of all would have understand like what is the role of a web service? What is the purpose of creating a class called as an API class, application program interface. So basically, let me just try to have a quick recap before we can go further with this. So if an external application, if there is an external application, and let's say if that application wanted to interact with the Salesforce, if there is an external application, let's say, and that application wanted to access the Salesforce. Now, when I say access, it actually means maybe that application wanted to fetch out certain records from an object, or maybe if that application is intended to insert a record inside one of the Salesforce object, maybe that application wanted to perform an update operation with some of the existing record inside in the Salesforce object. Any of the object could be standard or custom, whatever it is. Or maybe the application wanted to perform an insert operation, or maybe it wanted to perform a delete operation. So in all of these cases, in all of these cases, what I wanted to say is like, if there is an external application, and let's say this application wanted to interact with the Salesforce. So Salesforce, how do you are going to perform that sort of interaction? How would you respond to the request which are being sent from an external system? So for that purpose, we create something called as a web service class. For that purpose, we create something called as a web service. Now, web services, whenever we create, they are always being created with some of the HTTP methods. And every web service class would only have one of them, right? Every web service class could have only one HTTP method. I mean, people usually ask this type of tricky questions in the interviews, right? They would ask you like, oh, can we have a get and a post method in a single API? Can you create a web service where you could have more than one HTTP methods? So the simple answer to this is like, no. If you have two separate business logics, right? For example, you wanted to either insert a record and then you also wanted to delete a record. Now, these are two separate requirements. So let's consider these are two separate requirements. And for two separate requirements, we must create two separate web services. Because for insert, we are going to use another form of another form of HTTP class. Actually, for insert, we are going to use post method. Whereas, let's say for the delete, we are going to use delete, HTTP delete. But we cannot combine all together, we cannot combine them all together in a same class. So that is again a restriction, a governor limit you'll have to remember, right? So, so far what we did was something we understand. How do you provide this facility that from someone from an external world, someone who is not inside in our Salesforce organization,
He could also access, he could also gain the access on the object and the records of the Salesforce object particularly. So that is what the APIs would actually do. That is what this web services would actually do, right? So there, these all are the methods. Get method to retrieve the data. Like you, whenever you fire a query, SQL query, you always start your query with select statement. And once that query is executed, it would return you the data. In the same way, get is to retrieve the data, get the data from Salesforce object. Post is used to perform HTTP get rather. HTTP post is used to perform the insert operation to insert a new record inside any object of the Salesforce. We go with this one. Then HTTP put method. The HTTP put method is used particularly to perform the update operation. HTTP patch method is used to perform an upsert operation. Okay. Hmm. One second, huh? Just a moment. Guys, please excuse me just for 5 minutes, I'm pausing the recording. I'll be back in 5 minutes. One second, huh? Okay. So I was discussing about like the first thing, what is the purpose of writing a web service class? I hope that is clear to every one of you. So whenever we wanted that anybody from external world, anyone, any application maybe, if he wanted to gain the access over the records of the Salesforce, let's say with an application, with an external application, if someone wanted to get the data, retrieve the data, maybe insert a new record, update the existing record, perform the upsert operation, or maybe delete a record. So to perform, to provide all these facilities, we actually write down something called as a web service class. Now, now the way we have tested it using Workbench, right? Let me just try to replicate one of the example so that you would understand what I wanted to say. If you would have remembered, for the very first time, when I make a login into this, I would have selected to which environment I wanted to make this login. Let's say I wanted to make this login to the production or let's say the sandbox. You know, Let me try to replicate this once again. So if I would be selecting a sandbox, but in your case, it was production every time. Even though for the first time when I did this, the same steps which I'm doing right now, I did that for the very first time, and maybe you also would have that the same thing. So let's say I wanted to make a login into one of my sandbox or a production log. We usually don't do the production logins in real time, but because like you were been testing it with your developer or so that obviously is a production. So that's why we selected production. Although usually in real time, if I wanted to test any of my web services, so I would rather make a login to the sandbox. So I just try to replicate what I did. So it would ask me, see, it would ask me to select that environment. It would ask me to select to which sandbox you wanted to make a login. And because your workbench is also a tool that is being created from the Salesforce. The developers of the Salesforce has created this. That means it's a Salesforce created tool. So there is a lot many steps that is happening behind to this, right? There's a lot many steps which are happening behind to this, and we are unaware about that. Now, with this topic, OAuth authentication, let me just jump to that topic quickly. With this topic, OAuth authentication, we would be understanding, what happens
what actually happens, how this authentication process, the authorization process goes in real time. Because real time may we would never going to use workbenches. This is for our internal, this is for our internal, what to say, internal training purposes. So you would select that environment and then you make a login, right? It would ask you to select on which, if you would have selected that sandbox, you'll have to select a sandbox, particularly in that case, all right? It would ask you to enter your username and the password, and then it would ask for this. This is very important. CLI access. This is a very important thing. So basically, if you would allow this, if you would allow the workbench to have this access, then from this onward, from this moment still, from this moment onwards, every time the workbench is allowed to make a login, the workbench is allowed to make a direct login with this particular user on this particular sandbox. If you have allowed this at this moment, so what would happen in that case? From this moment onwards, the workbench is allowed that the user with this name, you know, want to make a login with Workbench, it would be directly allowed. And it would never, from this onward, it would not going to ask you every time. It would not going to ask you for entering your login details like your username and the password. Rather, it would make a direct login like what it happens in our case. But for the first time, we have replicated this. Everything what I was doing right now, when we were first time, whenever the first time we also were making that login, तो वो सारी steps हमने किया था उसमें, ठीक है? So I'm now making a login into production now, and see, it would ask me to select the environment. I would be selecting this 208, and now what is the difference? It have not asked me to enter my username and the password. Later on, it has that allow window does not have appeared because those entries are already being done. It has already been done, that those registry entries are there already inside. So that's why we make a direct login. So this is what we did with the workbench. अच्छा, अब workbench में how you would have tested the web service classes, तो हमने क्या किया? We go to the utilities, then we go to the REST Explorer, ठीक है? उसके बाद में इसके पहले का जो पाथ है स्लैश सर्विसेज, उसके पहले का पाथ इट ऑलरेडी हैज टेकन. अभी जब हम OAuth ऑथेंटिकेशन में वी वुड गोइंग टू यूज द पोस्टमैन, तो आपको पता चलेगा कि ये पाथ इतना सा नहीं है. दिस इज नॉट दैट जस्ट स्मॉल पाथ. मतलब व्हाट आई वांटेड टू से इज लाइक, let me take you to the developer console maybe, and if we have created, let's say this class, we have created account manager service. So I would just quickly open that. I could probably extend today's session. Let's complete this by today only. All right. So if this is a web service which you have created, which would returns all of the account records, right? All of the account records. Let me give a limit to this limit. Let's say 10. Instead of giving everything, just return me the 10 records from the account. All right. Or maybe even smaller. Let's say 5 only. Yeah. So how would we have performed the testing of this class? So we just copied this one, right? We go to the workbench. There, after services, we have deleted this. We type something called as apex rest slash the name of the web service, right? And then when after selecting this method, as of course, so it has given us the responses, right? It has given us the responses like this. But what path it has taken before that services, that is hidden to us. That is hidden to us. And there is a lot many things which happens in the background which we are unaware about because we haven't tested it. मैं आपको एक बात बताऊं. Generally postman या OAuth authentication process जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, they are usually not being taught inside in the trainings. और
आप चाहें तो वीडियोस देखें आप यूट्यूब पे जाके। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट यू आर गोइंग टू सी वुड बी लाइक कि अगर वेब सर्विस क्लासेस हाउ टू क्रिएट दैट दिस सिमिलर काइंड ऑफ कोडिंग, if someone is explaining this, so even they are also testing it with a workbench, right? But then people usually don't touch that OAuth authentication process and the use of like how you do this whole thing in real time. They usually don't taught it. A lot many videos I have seen, लेकिन मुझे तो ये नहीं दिखा है. I mean, unless and until you specifically type for OAuth authentication, probably that time, you might get some of the good videos. But at least usually in the trainings, this part is skipped. लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, रियल टाइम पे ना इट्स नॉट लाइक दिस. Yes, for our personal testing, I have created a web service, right? I am being a developer. I have created this web service. What is the duty of this web service? Whenever someone would call this, whenever someone would call this web service is supposed to give 5 records from the account, right? This is the intention. This is that business requirement. And for that requirement, I have created this class. Now, see, we are always being a developer. We are always responsible to perform something called as a unit testing. This is your responsibility. भाई आपने जो बनाया है उसको तो आपने ही चेक करना है ना. तो उसके लिए फिर वी कैन यूज दिस वर्क बेंच. और जो हमने किया भी लाइक so far whatever the web service we created, we have tested every one of them. We have tested using this the workbench, right? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ and you would understand what is the importance of learning OAuth authentication. You would understand this. Now I would ask you one question and think about this and then we will see कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, why we are learning that OAuth authentication process. Let's say if we have a user, an external user, let's say Akash. Akash is one of the external user. Now Akash was having this requirement that he wanted me to provide a facility that whenever Akash wanted to see a certain records of account, so he should get it out. So for this business requirement from one of our client named Akash, we created this class. We have tested it from the workbench. Now, how would you going to provide this facility to Akash? Are you going to say Akash, Akash, आपको ना workbench पे जाना पड़ेगा, and then you'll have to make a login like this. अच्छा ठीक है, वो भी कर लेंगे. All right, let's do that as well. So Akash would go to the workbench. Akash would try to make a login, right? Akash would try to make a login. You have guided app sandbox में जाइए. He would select an environment. He would select an environment. Then what? Then what? Are you going to supply your credential to Akash? Or maybe you are going to create one credits of Akash in the sandbox. So ये इस तरह से काम नहीं करता है. चलो ये तो आकाश होगा, ठीक है, हमने आकाश का एक यूजर क्रिएट कर दिया सैंडबॉक्स में, तो आकाश ने अपने यूजर से अपने पासवर्ड से लॉगिन किया. अगर ऐसे 1,000 यूजर है तो क्या आप सारे 1,000 यूजर्स के लिए आप यूजर क्रिएट करोगे? सोचिए आप, थोड़ा सा सोचिए. मतलब मैं चाहता हूँ उस रिक्वायरमेंट को समझो इसके पहले कि हम OAuth ऑथेंटिकेशन पढ़े. हम क्यों पढ़ रहे हैं यार? Why we are learning this when we see every web service which we have created, we tested it out. हमने सारी टेस्ट कर ली है. हमने जितना भी कोड किया आपने मैंने मिलके, we have tested every web service and how we did it with the workbench. मैं क्यों लेके जा रहा हूँ आपको OAuth ऑथेंटिकेशन, तो उसकी मैं रिक्वायरमेंट समझा रहा हूँ. तो आपने एक वेब सर्विस बनाई जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप अकाउंट के 5 रिकॉर्ड आपको मिल सकते हैं उसको. अगर आप इफ यू वुड हिट दैट वेब सर्विस, तो वो आपको अकाउंट के 5 रिकॉर्ड. एक एग्जांपल है, आप ज्यादा डीप में मत जाइए. अब ये वेब सर्विस आप एक्सपोज कर रहे हैं आउटर वर्ल्ड को, तो कैसे करेंगे आप बताइए? क्या आप वर्कबेंच से टेस्टिंग देंगे उसका? अगर आप वर्कबेंच से टेस्टिंग देंगे तो वर्कबेंच वुड आस्क फॉर द लॉगिन क्रेडेंशियल्स. तो क्या आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स हर किसी को देते बैठोगे? और या फिर आप हर यूजर का लॉगिन क्रेडेंशियल वर्कबेंच में, अगर जैसे आकाश ने लॉगिन करना है तो आकाश मस्ट हैव अ क्रेड्स, आकाश नाम का एक यूजर होना चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन पे. तब जाके यहाँ पे आकाश भाई अपना लॉगिन क्रेडेंशियल डालेंगे यहाँ पे एंड ही वुड सिलेक्ट हिज लाइक यूजर नेम एंड द पासवर्ड. और उसके बाद में फिर जो है तो वो ही कुड मेक अ लॉगिन टू टेस्ट दिस. तो क्या ये ऐसे होता है? नहीं, ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता ना. भी आप मुझे बताओ कि दिस इज लाइक हमने जब ये पोस्टल पिन कोड
एपीआई को हिट किया, दैट इज ऑल्सो एन एपीआई, दैट इज ऑल्सो एन एपीआई, राइट? तो क्या पोस्टल पिन कोड एपीआई में हमारे नाम का यूजर क्रिएटेड था? नहीं, इट वाज नॉट लाइक। हाँ, इट वाज इन वेदर मैप। वेदर मैप में आई टोल्ड यू दैट ओपन वेदर मैप में यू वुड हैव टू रिक्वायर समथिंग, उनका एक अपना कुछ एप्लीकेशन की और समथिंग, इट वाज समथिंग लाइक दैट. So this application would require, the request was in a form कि whenever you are creating a request, so यहाँ पे जब हमने देखा, so that time we have seen कि हमको यूजर क्रिएट कर, तो अब मैंने आप लोगों को अपना यूजर नेम वहाँ पे शेयर कर दिया था, ठीक है? वो दैट्स जस्ट एन पार्ट ऑफ द रिक्वेस्ट. बट आप खुद सोचो कि दिस इज एन ओपन सोर्स एपीआई, इसको कोई भी हिट कर सकता है, सारी दुनिया में से इसको कोई भी कॉल कर सकता है. whoever would go with this URL, you know, he could hit this API. अब this type of thing is called as open source APIs. हमारा ओपन सोर्स नहीं है एग्जैक्टली, बट देन अगेन we have a secured mechanism for this. तो how would you expose the web services to external world? ये कैसे होता है? इट इज नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, ऐसा नहीं होता है सिंपल कि मुंह उठाया और किसी ने यूआरएल टाइप कर दिया एंड यू जस्ट वुड सप्लाई दैट रिस्पॉन्स टू. इतना आसान नहीं है सेल्सफोर्स में से डेटा निकालना. बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट लाइक दिस एज वर्क बेंच जो होता है, इन शॉर्ट. देखिए, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया आपके इंटरव्यू में, हाउ यू हैव टेस्टेड the web services, the APIs which you have created, how you have performed the testings of that. And this is a very common question, right? So what you have to answer in that case is like, I tested this with Workbench as well as with the Postbench, as well as with the Postman. Now, what is the difference between testing a web service class, testing an API class from Workbench, and else testing that with the Postman? You would going to see that difference today. You're going to see that difference today, right? तो आपको ये क्वेश्चन आएगा 100%. They would ask you whether or not you worked on integration. You'll have to say yes. What sort of integration? Both inbound and outbound. I have. Let me ask Ram sir whether he's taking a class today or not. I would ask him to cancel his class if you have it. Do you have class, your lightning class today? Anyone? Could you please respond this? Or you don't have it? Not sure. आपकी आज lightning की क्लास रहती है क्या? Yes. Anyone? Are you guys saying something? I'm not. No, sir. Saturday no. Okay, okay. And then in that case, I don't require to message you. Fine. We would extend our. That's good. But anyhow, we are going to finish it out by today itself. Chali. So I was on to this fact, like they would ask you this question. This is a very common interview question. Have you worked on integration? You'll have to answer yes. What sort of integration? Both inbound and outbound. That means I have handled the incoming requests and I also know how to send the data. Right? For that, I have created web services. For inbound integration, you haven't created your web service. Try to understand. Inbound means something which is coming from outside. It was in the form of JSON. You converted that, right? Prior to this, ये postal pin code API और ये सब जो चीजें जो हमने सीखा, that was your inbound integration. Because यहाँ पे क्या हो रहा था? You were being hitting this API. आपको सिर्फ remote site setting करनी पड़ी. You have added this URL into remote site setting of Salesforce. And then I mean you hit that, आपने उसको hit किया, इसको hit किया आपने. You created a class, HTTP methods आपने यूज करी, वहां पे HTTP क्लास का यूज किया, आपने रिक्वेस्ट फॉर्म किया HTTP रिक्वेस्ट क्लास से. उसके बाद में आपने उस रिक्वेस्ट को सेंड किया, HTTP का जो भी आपने वेरिएबल बनाया उससे आपने सेंड मेथड लेके रिक्वेस्ट को सेंड किया. देन दैट रिक्वेस्ट जब गई, इसको इसने रिस्पॉन्स दिया जिसको आपने HTTP रिस्पॉन्स नाम की क्लास आपने एक वेरिएबल बनाया. उसके बाद में गेट बॉडी लिया, है ना? ये पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हमने समझाया था. एंड देन यू हैव पास्ड, आपने उसको पार्सिंग किया जेसन पार्सर क्लासेस की मदद से या जेसन डीसीरियलाइज मेथड की मदद से. तो दैट वाज योर इनकमिंग कम्युनिकेशन. जब आपको कोई बाहरी वेब सर्विस की से आपको डेटा आ रहा है, यहाँ पर ये जो डेटा आ रहा था ये एक वेब सर्विस से आ रहा था जो दूसरी बाहर की वेब सर्विस है, वहां से डेटा आप रिसीव कर रहे थे. सो व्हेन यू आर रिसीविंग द रिस्पॉन्स, इट्स सॉर्ट ऑफ योर इनबाउंड कम्युनिकेशन. उसके लिए आपको एपीआई नहीं बनानी है, ये तो खुद एक एपीआई है बॉस. ये एपीआई है जो आपको डेटा दे रही है. ये वी इन द सेल्सफोर्स वी वेर रिसीविंग दैट रिस्पॉन्स. तो हमने वो वाला काम किया सबसे पहले, है ना?
हमने इनबाउंड इंटीग्रेशन को समझा कि जब कोई बाहरी व्यक्ति, कोई बाहरी एप्लीकेशन इज सेंडिंग सर्टन रिस्पॉन्स टू अस precisely in the form of JSON. How could we pass that? How could we extract those information? हाँ, उसमें एक दो चीजें ये भी देखा आपने कि अगर JSON पे काफी बड़ा पेलोड आ रहा है, इनपुट पेलोड, how can you skip for the part and you just would focus on the on that portion of response which seems to be more intelligent, right? For your purpose. So how to extract only that at that particular portion of the JSON, that is also we have seen, राइट? तो हमने जो शुरुआत की ना, वो शुरुआत की है इनबाउंड इंटीग्रेशन के फॉर्म से। इसके बाद जो सेकंड स्टेप हमने आपके साथ डिस्कस किया, दैट वाज अबाउट द आउटबाउंड इंटीग्रेशन, कि चलिए अब आपने ले तो लिया, अब आपकी बारी है, you have taken certain things from the external world, now it's your time to revert the things back to the outer world। तो आप कैसे देंगे, बीइंग अ सेल्स फोर्स, हाउ वुड यू बिकम द सेंडर? तो उसमें आता है आउटबाउंड इंटीग्रेशन। तो आउटबाउंड इंटीग्रेशन के लिए ही आपने ये सारी चीजें, अब आपको एक वेब सर्विस बनानी है, लाइक यू नो हाउ हाउ वी हैव हिट द एक्सटर्नल एपीआई, आपने बाहरी वेब सर्विसेज को हिट करके डेटा लेना तो सीख लिया, अब हम हमारे एंड से कैसे डेटा दे सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति हमारे दरवाजे पे खड़ा होकर अकाउंट का डेटा, कॉन्टेक्ट का डेटा मांगता है, सो हाउ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड दैट फैसिलिटी टू। तो उसके लिए फिर अब हमने जो सीखा, दैट वाज आउटबाउंड इंटीग्रेशन। उसके लिए फिर हाउ वुड यू गोइंग टू परफॉर्म दिस वेब सर्विसेज, आपने कैसे लिखना, वो सब चीजें आपने यहाँ पे इस टॉपिक में बेसिकली वो चीज सीखी अभी। तो इस तरह से एट द एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपको दोनों फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन आते हैं आज की डेट में। आप जानते हैं इनबाउंड इंटीग्रेशंस को, you also know how to perform this outbound integration by writing the web service classes. So that's all we have learned about this whole thing. Now, another question would be कि ठीक है भाई साहब, आपने लिख तो लिया आउटबाउंड में, पर्टिकुलरली हाउ यू हैव टेस्टेड इट आउट। भाई तुमने एक वेब सर्विस बनाया है, वेदर और नॉट दिस वेब सर्विस इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, ये तो आपको चेक करना पड़ेगा। बीइंग अ डेवलपर, whatever the business logic you create, you are the person who is responsible to perform that first testing of it, which we usually call as unit testing. There's a proper word for this, unit testing। तो भाई साहब, यूनिट टेस्टिंग करना इज ऑलवेज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपर्स। तो उसके लिए तुमको पूछेगा कि तुमने कैसे किया है, तुमने कैसे किया, तो यू वुड गोइंग टू से या आई डिड दैट टेस्टिंग विद द वर्क बेंच, ऑल्सो विद द पोस्टमैन। व्हेन यू से दिस विद द पोस्टमैन, दे इमीडिएटली वुड अंडरस्टैंड, अच्छा अगर तुम पोस्टमैन की बात कर रहे हो, दिस मीन्स यू ऑल्सो नो, this means you also know the OAuth authentication process। Now they can ask you, अगर मेरे जैसा व्यक्ति रहेगा तो आई वुड गो वेरी स्टेप बाय स्टेप, अगर मेरे जैसा कोई इंसान तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है, टेकन अ लॉट मेनी ऑफ देम, सो आई डोंटली आई डोंट यूजुअली जंप टू द फाइनल कंक्लूजन, आई टेक इट वेरी स्टेप बाय स्टेप। बिकॉज अगर आप मुझे कह रहे हो कि मैंने तो उसे पोस्टमैन से भी टेस्ट कर रखा है, तो इफ यू वुड से दिस टू मी, तो पोस्टमैन से टेस्ट करने का के लिए आपको OAuth ऑथेंटिकेशन पता होना चाहिए। तब फिर मैं जाऊंगा इस टॉपिक पे, what is a connected app, how would you create a connected app, what is the significance of connected app, what is this OAuth authentication process, then and then only I would ask you this question। Otherwise, अच्छा ये देखो, this is a series of questions you could simply predict after giving a few of interviews, you simply could predict what's going to be the next question out of this context। तो ये होता है, it all depends। एंड आई ऑलवेज यूज टू से दिस टू एवरीवन, इंटरव्यूज को लाइटली लिया करो दोस्त। अगर तुमको इफ यू रियली वांटेड टू सी हाउ आई यूज टू गिव दिस, मैं आजकल इंटरव्यूज दे रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू मेक अ स्विच फ्रॉम रॉयल सर। यू वांटेड टू सी हाउ हाउ आई गिव्स माय इंटरव्यू, आओ बैठो देखो। इंटरव्यू इंटरव्यू रहता ही नहीं है मेरा, इट्स ऑलवेज लाइक अ डिस्कशन। सो बेसिकली आप जितना लाइट रहोगे ना, उतने आइडियाज आते हैं। आप अपनी एंजाइटी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो इट वुड बिकम अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर यू। आई ऑलवेज यूज्ड टू से क्या होगा यार, वर्स्ट टू वर्स्ट व्हाट कुड हैपन, कोई तुम्हारा पैसा लेके चला जा रहा है क्या, मतलब तुम्हारा इंटरव्यू फेल हो गया, लाओ हमको 200 रुपए दो। इज दिस समथिंग वुड हैपन, या तुमको कोई पेट में चाकू मार देगा? नहीं, नथिंग इज गोइंग टू ऑन, कुछ नहीं होता ना। द लास्ट व्हाट इज द
व्हाट इज द फाइनल थिंग व्हाट वुड हैपन? फेल हो जाएंगे ना, ठीक है ना, देयर इज ओपन, मार्केट इज ओपन दीज डेज, लाइक someone, maybe not this company, maybe someone another could provide you that opportunity, तो ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं लेना, बट एटलीस्ट यू शुड प्रिपेयर, यू शुड ऑलवेज प्रिपेयर वेरी वेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दीज आर सम अदर टॉपिक्स विल डिस्कस दिस इन अ सेपरेट डिस्कशन, विल गोइंग टू सी। तो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज एन OAuth ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, एंड दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस whenever we perform the testings in real time, because डेवलपर्स तो अपना टेस्टिंग करके हट जाएगा, लेकिन कोई भी एक्सटर्नल व्यक्ति है, जैसे मान के चलो कि आप, मैंने आकाश, मेरा क्लाइंट है और आकाश ने मुझे ये काम दिया था कि आप मुझे एक ऐसा वेब सर्विस लिख के दीजिए जो कि जब मैं हिट करूं, इट वुड रिटर्न मी जैसे 5 अकाउंट, यूजुअली इतना सिंपल नहीं होता है, बट एक एग्जांपल है मेरा, या मैं अकाउंट का नाम दूं और वो नाम का अकाउंट जो है मुझे उसका रिकॉर्ड्स मिल जाए, ऐसा तो हो ही सकता है एटलीस्ट। तो मैं कहूंगा आकाश मैंने वो बना लिया, तो आकाश कहेगा ठीक है आपने बना लिया, वेरी गुड, नाउ प्लीज लेट मी नो, और क्या आपने टेस्ट किया है? तो आई एम गोइंग टू से यस यस, मैंने टेस्ट कर रखा है, मैंने तो अपना वर्क बेंच पे उसकी टेस्टिंग कर ली। लेकिन आकाश फिर उसे कैसे टेस्ट करेगा? हमारे क्लाइंट्स, एक्सटर्नल वर्ल्ड के लोग, हम वर्क बेंच को फैसिलिटेट नहीं कर सकते, ये आपने आज देख लिया कि व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन विद दिस। जो भी व्यक्ति वर्क बेंच से टेस्ट कर रहा है उसके अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स होने चाहिए, ना तो मैं अपने क्रेडेंशियल्स आकाश को दूंगा और ना ही आकाश की क्रेडेंशियल्स हम अपने ऑर्ग में क्रिएट करेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं जब आप एक यूजर को क्रिएट करते हैं तो उसको लाइसेंस देना पड़ता है, दैट टू बी सिस्टम एडमिन लाइसेंस चाहिए, इसके लिए सेल्सफोर्स लाइसेंस चाहिए, सिस्टम एडमिन प्रोफाइल चाहिए, सॉरी मैं गलत हुआ, सेल्सफोर्स लाइसेंस चाहिए, और सेल्सफोर्स लाइसेंस तो बड़ा कॉस्टली होता है, सेल्सफोर्स लाइसेंस जो होता है वो बड़ा कॉस्टली होता है। आई मीन इन केस ऑफ एन अनलिमिटेड एडिशन इट ऑलमोस्ट गोज आई गेस $250 और $500 पर यूजर पर मंथ, तो हम ये तो नहीं कर सकते, राइट? तो फिर कैसे कोई बाहरी व्यक्ति एक वेब सर्विस क्लास को टेस्ट कर सकता है? तो उसकी प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ जो कि रियल टाइम प्रोसेस है, ठीक है, और ये इतना आगे तक कोई नहीं इसको पढ़ाता है, टेल यू दिस। ठीक है, चलिए। So Salesforce has an internal built-up mechanism for this whole thing. There's a thing called as authorization server. This is a very important part of Salesforce. Authorization server. So authorization server का काम होता है कि जब भी कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति, क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट, फिरोज तो नहीं लेकिन आकाश जरूर, कोई बाहर से व्यक्ति, इफ समवन फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड लाइक आकाश, if you wanted to fetch a certain record from the Salesforce via web service, या मैं इनको और शॉर्ट कर देता हूँ कि anybody from an external world wanted to hit an API, wanted to hit a web service class, और ये कहाँ पर है? It is inside your Salesforce organization. It is inside the Salesforce organization. So how this whole mechanism actually works? बिकॉज अभी तो कैसा था कि इफ राकेश वॉज अ डेवलपर, जैसे कासिम वॉज अ डेवलपर, मैंने बनाया और मैंने खुद ही टेस्ट कर लिया, मैंने एक चीज बनाई और मैंने खुद ही खा ली और बाद में बोला वाह क्या बनाया मैंने इसको, है ना, क्या बनाया, क्या डिश बनाया मैंने, बनाया मैगी था लेकिन क्या मैगी बनाया मैंने, कुछ नहीं किया, पानी उबाला, वो पैकेट फोड़ के डाला और मैगी डाला, लेकिन क्या बनाया मैंने, हाउ टेस्टी इट वाज। तो हमने अपनी तो तारीफ कर ली, बढ़िया, आकाश खाएगा तभी तो बताएगा। So how would you provide that external person to have to access to that web service which you have created inside the org? तो उसका अपना एक मैकेनिज्म है, and that mechanism goes through an authorization server. तो क्या होता है, there's an step by step approach। अच्छा देखो, इंटीग्रेशन इज ऑलवेज अ टू पर्सन जॉब। कुछ चीजें हैं जो आपको, जैसे ये है वो वेब सर्विस विच यू हैव क्रिएटेड जिसकी तुम इतनी तारीफें कर रहे हो, ये है वो वेब सर्विस क्लास जो आपने बनाई है और जिसका ढिंडोरा इतना पीट रहे हो, आज क्या बनाया मैंने इसको, क्या बनाया, है ना? तो इसको आप कैसे प्रोवाइड करके दोगे बाहरी लोग? तो उसका फिर एक तरीका होता है, नॉट जस्ट विद दिस समथिंग, यू हैव टू गो फॉरवर्ड एंड क्रिएट अ फ्यू मोर थिंग्स to provide the access to this particular web service. So what is that? The first thing, step number one, I tell you, is to create a connected app. Salesforce के अंदर आपको कनेक्टेड ऐप बनाना पड़ेगा। इट इज जस्ट लाइक जब तुम किसी से ले रहे थे, अभी तो आपकी देने की बारी है वो अलग बात है, लेकिन आप याद करो वो समय जब आप पोस्टल पिन कोड एपीआई से आप पिन कोड के रिस्पॉन्सेस ले रहे थे,
जब आप वेदर मैप, ओपन वेदर मैप करके जो वेबसाइट है उससे आप वेदर की डिटेल्स ले रहे थे, वो यूनिवर्सिटी वाले के एग्जाम्पल करवाया था मैंने आप लोगों से। तो भाई साहब जब आप ले रहे थे, तो हाउ वुड सेल्सफोर्स हैव अलाउड यू, आपको वो पर्टिकुलर यूआरएल, एंड पॉइंट यूआरएल को आपने रिमोट साइट सेटिंग के अंदर डालना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर सेल्सफोर्स आपको अलाउ नहीं करता है। नाउ इन द सेम वे, अब वो था लेने वाली बात, अब देने वाली बातें चल रही है कि आपने एक वेब सर्विस बनाई है जो कुछ एक काम कर रही है, जैसे वो गेट मेथड है, पोस्ट मेथड है, पुट है, पैच है, डिलीट है, वट एवर इट इज। हाँ, लेकिन जो कुछ भी अब वो देने वाली बात चल रही, तो इस वक्त, इस समय आपने क्या करना है? फर्स्ट, द फर्स्ट थिंग इज लाइक, आपको एक कनेक्टेड ऐप बनाना है। कनेक्टेड ऐप जब क्रिएट होता है तो इट वुड प्रोवाइड यू टू मेजर इंपॉर्टेंट थिंग। एक कहलाता है क्लाइंट सीक्रेट या कंज्यूमर सीक्रेट, दूसरा क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट क्लाइंट आईडी, या कंज्यूमर सीक्रेट कंज्यूमर की, ऐसा बोलते हैं इसको। ये चीज, ये चीज, ठीक है, दिस, उसके बाद में, और फिर जो भी यूजर है, यूजर नेम एंड डिटेल्स, पासवर्ड वगैरह, सेकंड ये तो पहले से बनाया हुआ है अपना, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। हाँ, ये सारी चीजें, मतलब दिस टू थिंग्स यू हैव टू गिव इट टू, यू हैव टू गिव इट टू द आकाश, आकाश को आपने प्रोवाइड करनी है। अब आप सोचना यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो दैट इन केस ऑफ रियल टाइम इट इज ऑलवेज, हम अपना नहीं प्रोवाइड करते हैं, मतलब रियल टाइम पे इट इज ऑलवेज एन इंटीग्रेशन यूजर। रियल टाइम पे क्या होता है कि, बिकॉज हाउ वुड आई, हाउ कैन आई गिव माई क्रेडिट्स टू समवन, राइट? तो हम इसको यूजर नेम और पासवर्ड, मतलब वेन एवर वी डू एन इंटीग्रेशन रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि वी क्रिएट अ यूजर कॉल्ड एज इंटीग्रेशन यूजर इनसाइड इन Salesforce with very limited permission set, with very limited permission set. It is usually, रीड तो रहता ही है, क्रिएट नहीं, नहीं CRUD परमिशन देनी पड़ती है, रीड, क्रिएट, हाँ नहीं नहीं रहता है, CRUD परमिशन रहता है, बट दैट टू बी ओनली ऑन द ऑब्जेक्ट। तो हम यूजुअली क्या करते हैं, हाउ डू यू मेंटेन दिस, ये थोड़ा सा सुन लो आप मेरे से। मैंने एक यूजर बनाया, उसको, उसका प्रोफाइल, उसके लिए पहले एक मैंने प्रोफाइल बनाया, एक कस्टम प्रोफाइल बनाया। उस प्रोफाइल के अंदर में, उस प्रोफाइल को लाइसेंस, भले ही सेल्सफोर्स लाइसेंस रहेगा बट वो सिस्टम एडमिन नहीं रहेगा। उसको हमने उस प्रोफाइल के थ्रू सारी चीजें रिस्ट्रिक्ट कर दी सिवाय ऑब्जेक्ट परमिशंस के। मैं इतनी बातें क्यों कर रहा हूँ, आई कैन शो यू दिस। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू वुड बी लाइक, मैं, आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल वुड गो टू, एक प्रोफाइल बनाऊंगा मैं ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, बिकॉज मुझे पता है कि इंटीग्रेशन के दौरान मुझे यूजर नेम और मुझे यूजर नेम और पासवर्ड देना है। तो लेट्स कंसीडर दिस स्टैंडर्ड यूजर, ऐसा मान के चलो कि ये है वो यूजर, टू जीरो स्टैंडर्ड यूजर। और यहाँ पे, जैसे इसका नाम मैंने स्टैंडर्ड यूजर के बजाय मैंने इसका नाम रख दिया स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन यूजर, समथिंग लाइक दिस, राइट? स्टैंडर्ड, वैसे इसका नाम यूजुअली इंटीग्रेशन ही रखते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन यूजर, इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन यूजर। नाउ आई वुड रिमूव द परमिशंस ऑफ दिस होल एप्लीकेशन, ये सारे हटा लूंगा मैं, ठीक है, या फिर मैं परमिशन सेट के थ्रू भी कर सकता हूँ। एंड आई जस्ट वुड प्रोवाइड हिम द एक्सेस टू द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट लेवल पे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट चेक ऑल, ठीक है, कस्टम ऑब्जेक्ट चेक ऑल, ये दो परमिशन छोड़ के बाकी सब हटा लेते हैं। तो ये जो यूजर है इंटीग्रेशन वाला, नाउ व्हाट ही कैन परफॉर्म, ही कैन मैक्सिमम यूटिलाइज द ऑब्जेक्ट्स। हाँ, उस पे वो रीड राइट, अब उस पे भी आप अगर और एक्सटेंड करना चाहते हो इस फैसिलिटी को, तो वी कैन डू दैट एज वेल, है ना? वी ऑल मॉडिफाई ऑल देना या नहीं देना, इट्स ऑलवेज अप टू योर, आप आपके ऊपर रहता है कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। और एक, आज मैं एक और बात आपसे बोल रहा हूँ, ये चेक ऑल का बटन आपके इसमें आता है क्या, जरा सा देख के बता। फिर अगर नहीं आता तो उसे कैसे लाना, फिर मैं बताऊंगा आपको। पहले आप अपने ऑर्ग पे जाना और ये बताना मुझे कि चेक ऑल का बटन आपको दिखता है, ठीक है? एनीवेज, चलो, तो ये इस तरह से एक यूजर क्रिएट कर दिया जाता है, ठीक है। सो हाँ, द फर्स्ट थिंग, द स्टेप नंबर वन इज टू क्रिएट अ कनेक्टेड ऐप, एंड द सेकेंड थिंग, यू मस्ट हैव अ लॉगिन क्रेडेंशियल, बट अभी तो मैंने किया नहीं है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं अपने जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है वो मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। एंड दीज टू थिंग्स वी वुड सप्लाई दिस टू, इस क्लाइंट को हम देंगे, ये जो हमारा क्लाइंट है इसको ये पॉइंट नंबर वन प्लस पॉइंट नंबर टू प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके साथ, उसके साथ मतलब जैसे आपने जो क्लाइंट आईडी, ये जो पॉइंट नंबर वन है,
जिसमें आपने क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट या कंज्यूमर सीक्रेट कंज्यूमर की प्लस यूजर नेम पासवर्ड, ही वुड गोइंग टू फॉर्म अ रिक्वेस्ट, ही वुड गोइंग टू फॉर्म अ रिक्वेस्ट थोड़े से, और इसमें एक दो स्टेप्स बढ़ेंगी आगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आएगा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट सिंप्लीफाई एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। दैट रिक्वेस्ट इनिशियली गोज टू अथराइजेशन सर्वर। तो ये जो रिक्वेस्ट करेगा, ये अभी क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, ये बस रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मेरे को कनेक्ट होने दो आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि मैं इस वेब सर्विस क्लास से कुछ ले सकूं या दे सकूं जो भी है। तो अभी सिर्फ ये कनेक्शन मांग रहा है, ये अथराइजेशन मांग रहा है। तो उसके लिए व्हाट ही हैज टू डू, ही दिस रिक्वेस्ट गोज टू अथराइजेशन सर्वर। सेल्सफोर्स में अपना एक अथराइजेशन सर्वर, जैसे फोर्स डॉट कॉम एक यूनिट होता है सेल्सफोर्स का, डेटाबेस डॉट कॉम एक यूनिट होता है, विच इज कॉमन फॉर एवरीवन। इन द सेम वे अथराइजेशन सर्वर is common for everyone. See, there is only one force.com, there is only one database.com, there is only one authorization server. Remember, your org don't separately have it, right? It's common for everyone. अगर मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ और आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं और कोई और एक प्रोग्राम बना रहा है, सारी दुनिया में जितने भी लोग सेल्सफोर्स में बैठ के एपेक्स में प्रोग्राम कर रहे हैं, तो फोर्स डॉट कॉम प्लेटफॉर्म वुड गोइंग टू कंपाइल दिस होल। देयर इज ओनली वन फोर्स डॉट कॉम। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा फोर्स डॉट कॉम अलग है, आपका कंपाइलर अलग है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन द सेम वे देयर इज ओनली वन डेटाबेस डॉट कॉम, देयर इज ओनली वन अथराइजेशन, ठीक है। सो दिस रिक्वेस्ट गोज टू अथराइजेशन सर्वर फर्स्ट ऑफ ऑल। now authorization server is has that interaction with your Salesforce, or actually it has interaction with every one of them। तो जो आपने यूजर नेम और पासवर्ड और एक दो पैरामीटर्स और आएंगे अभी तुम्हारे सामने, जैसे ग्रांट टाइप वगैरह, वो सारी चीजें इट वुड गोइंग टू कंपेयर विद दिस ऑर्ग। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो कनेक्टेड ऐप है उसमें वही कंज्यूमर की कंज्यूमर सीक्रेट, द यूजर नेम एंड द पासवर्ड्स एंड एवरीथिंग, सब कुछ मैच होता है। अगर मैच होता है तो ये अप्रूव करता है। अब ये रिस्पॉन्स देता है कि हाँ यस यू आर अप्रूव्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये प्रोवाइड करता है, अथराइजेशन सर्वर प्रोवाइड करता है, दैट इज द एक्सेस टोकन। तो ये रिस्पॉन्स मिलने का मतलब होता है कि दिस पर्सन आकाश इज नाउ अलाउड टू एक्सेस समथिंग फ्रॉम दिस ऑर्ग, ठीक है। तो उसके बाद में फिर इसका ये हो गया फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज अथराइजेशन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच इज कॉल्ड एज अथराइजेशन। विदाउट अथोराइजेशन, ये सिंपल है, बहुत सिंपल सी चीज है। आप बताओ ना, कोई एक सिक्योर्ड बिल्डिंग है, मान के चलो कोई एक सिक्योर्ड ऑफिस है, गवर्नमेंट का ऑफिस है, कुछ ऐसा, जब तक आप अथोराइज नहीं हो तो क्या आप उस बिल्डिंग में एंटर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, राइट। आपके पास में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना ऐसा, विच यू कुड शो टू, देखो आई एम एन अथोराइज पर्सन एंड आई कुड एंटर इनटू दिस प्रेमाइसेस। तो ये वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, दिस इज जस्ट लाइक दैट पैटर्न, कि भाई आप पहले सबसे पहले हम एक Salesforce में कनेक्टेड ऐप बनाएंगे, देन वी वुड सेकेंडली वी ऑलरेडी हैव सम यूजर नेम एंड पासवर्ड। समटाइम नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अ कॉमन यूजर फॉर एवरीवन। इंटीग्रेशन का एक सेपरेट यूजर ही बना दिया जाता है, ठीक है। सो फिर ये दो चीजें, ये दो इंफॉर्मेशन आई एम गोइंग टू शेयर दिस विथ माई क्लाइंट, बिकॉज क्लाइंट इज ऑल्सो लेजिमिटेटेड पर्सन, राइट। ये कोई एनोनिमस नहीं है। मैंने कहा ना, एक बात, बात में अभी एक बात बोली थी मैंने कि ये तो ओपन सोर्स एपीआईज हैं, ये आपका जो यहाँ पे था वेदर मैप, और वो, इसको तो कोई भी एक्सेस कर सकता है। सेल्सफोर्स के केस में ऐसा थोड़ी ना होने वाला है। सेल्सफोर्स इज नॉट लाइक दैट, कोई मुंह उठा के आ गया और बोल दे। तो इवन इफ समवन वांटेड टू गेट द एक्सेस, he'll have to follow a known pattern, एक पैटर्न के थ्रू जाना है, राइट। देयर आर सर्टन स्टेप्स। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्लाइंट इज नॉट एनी एनोनिमस पर्सन, इज ऑल्सो अ लेजिटिमेटेड बॉडी, एक ऐसा पर्सन है which is allowed to have the access, that's why you are sharing this detail with him, number one, and number two, now once he have those thing, right, he would form something called as a request consists of your client id, the client secret जो connected app से मिलता है, username and the password जो यहाँ से मिलता है, and there is something called as a grant type एक अलग अलग टाइप्स होते हैं, बट इन आर केस इट ऑलवेज गोइंग टू बी पासवर्ड। हालांकि इसका नेम स्पेस है एंड देर आर फ्यू मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ दिस, बट आपके लिए इट वुड बी अ हार्ड कोडेड वैल्यू पासवर्ड। रन टाइप वुड ऑलवेज गोइंग टू बी द पासवर्ड। यू वांटेड टू लर्न इट मोर, यू कैन गूगल इट आउट, आप चाहो तो इसको गूगल कर लो, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्रांट टाइप इन OAuth ऑथेंटिकेशन, आई कैन शो यू दैट एज वेल, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ
different forms of, I guess, different forms of grant types in Salesforce. So you can get certain, you can get certain, I mean, what to say, certain different forms of this. तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो. तो we are following that username password flow. हम लोग username password flow चाह रहे हैं, but otherwise there would be a different forms of that. ठीक है. So there are certain specialized form of integration जहाँ पे इतना इतना deep में हम जाते हैं. But usually, in 90% of the cases, it's always your password. Grant type would always be the password. Because जो flow ये जो flow मैं आपको सिखा रहा हूँ, this is called as username password flow. यहाँ सारी चीजें जो है वो किस पे निर्भर करती हैं, यूजरनेम एंड पासवर्ड पे. बट एनीवेज देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ दैट. एनीवे चलो. तो उसके बाद में ये जो चीजें आपने एज अ रिक्वेस्ट दिया, that everything would be authorized by authorization server. There is a separate body of Salesforce called as authorization server, which is responsible to see whether this request is authenticated one or whether this request is legitimated or not. So this authorization server would perform that task on behalf of you. It go to your org, then check for that connected app, whether this client ID, the values and the client secret values is matching or not. It goes to the details of usernames. There you would going to perform this checking inside in metadata, whether for this username this is the password or not. When everything found to be appropriate, it come back, all right, say okay, you are an authorized person and this is that access token. So response usually consists of response, which we are going to see. Plus, the most important entity out of this is the access token. Without this access token, you cannot form a final request to API, because इसके बाद की जो स्टेप है उसमें आपकी रिक्वेस्ट रहेगी प्लस एक्सेस टोकन. If you would send a request without access token, web service wouldn't go provide you anything. तो रिक्वेस्ट जो भी आप कर रहे हो, मतलब हमने भी किया, लेकिन कैसे किया, ये जो आपने वर्क बेंच में यहाँ दिया ना, दिस इज रिक्वेस्ट. बट ये रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के लिए एक एक्सेस टोकन भी था, वो आपको नहीं मिला यहाँ पे. वही तो क्यों नहीं मिला, बिकॉज वर्क बेंच ऐसे टाई अप हो जाता है आपके सेल्सफोर्स ऑफ के साथ, एंड इट इंटरनली परफॉर्म दैट एवरीथिंग. ये भी OAuth फॉलो कर रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग बैक एंड टू दिस. तो जब आप इन चीजों को फ्रंट एंड पे लाते हो, अभी तो कैसा है कि आप डेवलपर हो, आप ही टेस्ट कर रहे हो, खुद बना रहे हो और खुद खा रहे हो, तो चीजें बाकी की जो बैकएंड की चीजें वो उतना मायने नहीं रखती. बट जब किसी यूजर को टेस्ट करना है तो ये सारी चीजें फ्रंट पे आ जाती हैं. तो कैसे वो प्रोवाइड करें हम फैसिलिटी, वो हम डिस्कस कर रहे हैं. तो फिर वो रिक्वेस्ट बनाएगा, दैट यूजर वुड फॉर्म अ रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट बनाएगा, और रिक्वेस्ट के साथ एक चीज और आनी चाहिए, एक्सेस टोकन. और एक्सेस टोकन लेने का मैकेनिज्म ये था जो अभी हमने डिस्कस किया. दैट रिक्वेस्ट प्लस एक्सेस टोकन गोज टू द वेब सर्विस, और फिर वेब सर्विस जो है अपना रिस्पॉन्स उसको प्रोवाइड करेगी, लाइक यू जस्ट हैव सीन इट ओवर हियर. ये है वो रिस्पॉन्स. तो इस तरह से रियल टाइम पे इसकी टेस्टिंग परफॉर्म होती है. इस तरह से रियल टाइम पे इसकी टेस्टिंग परफॉर्म. एंड दिस गोज वाया एन ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कॉल्ड एज OAuth ऑथेंटिकेशन. कौन सा फ्लो पढ़ रहे हैं आप, विच टाइप ऑफ, एक क्वेश्चन और है इसमें कि विच टाइप ऑफ ये ग्रैंड टाइप पढ़ रहे हैं आप, तो आपको बोलना है कि हमने यूजर नेम पासवर्ड फ्लो पढ़ा है. यूजर नेम पासवर्ड, देर आर फ्यू मोर फॉर्म्स ऑफ दिस. नेम स्पेस आता है एक, और एक मैं बताऊंगा, आई जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट दैट डॉक्यूमेंट. तो ग्रैंड टाइप के भी मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं, यू कैन गूगल एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड इट आउट. बट विच यू आर द वन विच यू आर अंडरस्टैंडिंग इज यूजर नेम पासवर्ड फ्लो बोलते हैं इसको. ठीक है. चलिए, तो इसको देखते हैं हम लोग. लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक ऑफ लेट्स से 5 minutes. We'll going to connect at 8:35 or 8:36, right? I'm pausing because I wanted this to be get completed by today itself. Let's take a break of 5 minutes, not more. So let's say that I wanted to access a web service, right? Maybe the one which we have created, this one. So I shall copy this code, and I would be pasting it out over here. So let's say as an of requirement, we have created this web service class, and I wanted that
my clients or somebody who has requested it, a stakeholder or someone else. So he should perform the testing, because from my end I already have tested. I used Workbench for that, and I found the results as satisfactory, and I understand that from my end everything goes good. Now I wanted that the stakeholders or business would also perform this testing. So how I'm going to provide those steps to them so that they could efficiently perform the testing of this class. So for that, we will obviously, they would going to require a software called as, we'll just close out everything, a Postman. So they, from this onward, right? So they would require a software, an application. They would require to install it into their systems. This application is called as Postman. Now, the very first thing to provide this facility is like you have to go to your Salesforce, or and you have to create something called as a connected app. You have to create something called as a connected app. The very first step, as I have told you, the first step is to create the connected app, because connected app would certainly provide us something called as consumer key and consumer secret. Actually, uh, see, the testing process has been सब कुछ लिख दिया है मैंने यहाँ पे. So the step number one is to create the connected app. चलिए, तो how to do that? So creating a connected app, you have to go to the setup menu and then build menu. Inside in your create, you find this apps. And हमने ये use किया भी था. That was the very first thing I guess we have created. जब आप और मैं हम लोग admin पढ़ रहे थे, है ना, तो उस वक्त जो सबसे पहली चीज हमने बनाई थी, होता है कि एप्लीकेशन हमने बनाया ये, जैसे 208 HR मैनेजमेंट और जो भी मर्किन कॉर्पोरेशन. So we created that, right? यहाँ से. So onto this particular page only, if you would scroll a little bit down, you would going to see a separate section called as connected app. So here you would have this new button, और जिसे आपने press करना है. After that, you would going to land onto this page. So अब यहाँ पर आप एक connected app बनाओ. So let me give the name as, let's say, batch 208 connected app. So okay, this is the name which I'm giving. You can give any name. Actually, this is again, there is I mean, what to say for this. There is a naming standard for this, but that depends. That varies between organization to organization. So if you would have, or generally organizations के पास पहले से एक connected app रहता है, और अगर आपको बाय भी कहा गया कि you have to create a new one, तो फिर आपको ये पूछना पड़ता है कि what's going to be the name of that, because usually organization maintain something a name credentials for this, right? They have a defined naming conventions. तो अभी तो मैंने ऐसे ही एक नाम दे दिया इसको, लेकिन इस तरह से इसको नाम नहीं दिया जाता है, आप ये भी जान लें. ठीक है. नाउ दिस आईडी नॉर्मली इज द ऑर्गेनाइजेशनल आईडी. जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका आउटलुक अकाउंट का आईडी होता है. बट इन आवर केस अगेन, वी वुड गोइंग टू गिव दैट 208 का जो आईडी है आपका, I would be going to give that ID over here. So this is that 208 account. ये मैं यहाँ पे दे रहा हूँ. Phone number is optional, as you can see, right? It's an optional thing. Then you would have to scroll it down and yeah, over into this section. ये देख रहे हैं आप, API enable OAuth settings, right? This is very important. I mean, apart from these 1, 2, 3 entries, that to be आपने बस ये डाला, API name तो is automatically created. The second thing what you have entered is the organizational contact email ID, which in our case हमने अपना ले लिया, but usually जो organization का outlook account होता है ना, वो यहाँ पे दिया जाता है. Now the next important thing is to check this checkbox. ये आपने check करना है. उसके बाद में these are the settings which get open automatically. इनको fill करना है. तो कॉल बैक का मतलब होता है कि आफ्टर हिटिंग दैट एपीआई ये कहाँ वापस आना चाहिए. तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज कॉल बैक एपीआई. तो इसका भी एक, आई मीन, वेन एवर वी आई जस्ट कॉपी दिस वन ऑल्दो, और मैं काम, या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि 1 सेकेंड,
मेक दिस टैब डुप्लीकेट, मैं होम पे चला जाता हूँ। होम पे जाने के बाद में दिस यूआरएल, इसको मैं कॉपी करके यहाँ ला देता हूँ। दिस इज अ टेम्पररी थिंग। रियल टाइम में आपने, इफ लेट्स से इफ द रिक्वायरमेंट इज टू क्रिएट द कनेक्टेड ऐप, तो आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे अगेंस्ट दैट रिक्वायरमेंट इफ दे आर नॉट बीइंग प्रोवाइडेड। मतलब यूजुअली ऐसा होता है कि जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको एक कनेक्टेड ऐप बनाना है, सो आई वुड बी द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव ऑल दीज डिटेल्स। कनेक्टेड ऐप का नाम क्या रहेगा, कनेक्टेड ऐप के लिए ईमेल आईडी कौन सा यूज करना है, और कॉल बैक यूआरएल्स क्या रहे। दूसरा, क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। बट इफ let's say if I have not supplied all those information, तो it would become your responsibility to ask me those questions. कि ठीक है, I would going to create that, but for that creation of connected, I would be requiring these mandatory details. Without that, I wouldn't be able to create that connected app. तो वो स्टेप्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। सो कॉल बैक यूआरएल इज समथिंग कि वो एपीआई को हिट करने के बाद इसने वापस कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी द कॉल बैक यूआरएल। उसके बाद अब कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है, दैट यू कैन सिलेक्ट इट फ्रॉम हियर। यूजुअली क्या करते हैं, फुल एक्सेस देते हैं। फुल एक्सेस देखो, और आप चाहें इफ यू वुड हैव अ परमिशन सेट, आपने कोई एक परमिशन सेट बना रखा है, ठीक है, तो वो परमिशन सेट आप यहाँ पे दे सकते हो। या फिर यू कैन सिंपली सिलेक्ट कि वाया दिस कनेक्टेड ऐप, जो बाहरी का पर्सन है आकाश, वो कौन कौन सी फैसिलिटीज को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये तो हम यूजुअली क्या करते हैं, फुल एक्सेस देते हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि जो यूजर नेम और पासवर्ड हमने बनाया है वो एक इंटीग्रेशन यूजर का है, और उस इंटीग्रेशन यूजर को जो प्रोफाइल दी गई है उसमें हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। तो इवन दो इफ आई वुड प्रोवाइडिंग अ फुल एक्सेस फ्रॉम हियर, दैट डज नॉट मीन्स कि आकाश को सारी एक्सेस मिल जाएंगी। तो यहां से सिलेक्टिव ना होते हुए माय सजेशन वुड भी कि आप यहां से फुल एक्सेस ले लो, यहां से आप फुल एक्सेस को सिलेक्ट कर लो। लेकिन फिर जो यूजर नेम और पासवर्ड आप उस यूजर को दे रहे हो, वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगा दो। या तो आप प्रोफाइल से कर लीजिए, और या फिर आप परमिशन सेट से कर लीजिए। अगर आपने कोई कस्टम प्रोफाइल ना क्रिएट कर रखी हो फॉर अ मोमेंट, तो ठीक है ना, आप एक काम करिए, आप उसे सिस्टम एडमिन प्रोफाइल दे दीजिए। लेकिन सिस्टम एडमिन प्रोफाइल देने के बाद आप एक परमिशन सेट बनाइए, और वो परमिशन सेट जो है उसको अलाउ कर दीजिए। तो भले ही वो सिस्टम एडमिन प्रोफाइल होगा, भले ही उसके पास सेल्सफोर्स लाइसेंस होगा, या भले ही उसके पास में आपने यहाँ से फुल एक्सेस दे रखी है, स्टिल जो परमिशन सेट आपने बनाया है उसके अकॉर्डिंगली उसका एक्सेस डिसाइड होता है। तो ये इस तरह से कंट्रोल की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही करना पड़ता है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं यहाँ पे, बस इतना ही आपने करना है। एंड वंस एवरीथिंग हैज बीन डन, यू जस्ट वुड हैव टू सेव दिस। तो ये कहता है कि हाँ, आपको थोड़ा समय लगेगा कनेक्टेड ऐप बनाने के लिए, तो बेटो हमारे पास समय ही समय है। यार यहाँ पे ब्रेक लेना चाहिए था मेरे ख्याल। चलो कोई बात नहीं। सो ये एक बटन मैंने क्लिक किया है, मैनेज। आई शुड गो बैक फॉर दिस स्लाइड। व्हाट दिस, वेरीफाई, ओके। आई थिंक दिस इज समथिंग न्यू, ये मैंने शायद इसके पहले देखा भी होगा तो मैं भूल गया हूँ, या फिर मैंने नहीं देखा। एनीवेज, आई हैव क्लिक दैट बटन, इट हैज सेंड वन verification code which I am entering over here, and I am clicking onto this verify button. ठीक है, these are the two important things जो हमको चाहिए। और I guess for the first time you'll have to go through with this. What happens with the next time, let me go once again. I go to the apps, and I go to the connected app. I click onto this one which I just have created, and if I would once again, if I would click it, so for the second time it would not ask you although, but for the first time it would send an verification code on the registered email ID, and that you have to enter to get these two important things: consumer key and consumer secret, right? You cannot type it out, you just have to copy. चलो, ये था हमारा स्टेप नंबर वन। ये था हमारा स्टेप नंबर वन, क्रिएट द कनेक्टेड ऐप। आई एम कमिंग टू दिस स्टेप, मैं आता हूँ, पहले इसकी नेसेसिटी बताता हूँ आपको, उसके बाद मैं आता हूँ। नाउ व्हाट व्हाट नेक्स्ट यू शुड हैव इज द यूजर नेम एंड द पासवर्ड।
तो दिस इज द यूजर नेम एंड द पासवर्ड विच आई क्रिएटेड फॉर योर बैच। बट हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि यूजुअली हम ऐसा नहीं करते हैं, रियल टाइम में एक डेडिकेटेड यूजर होता है जिसका नाम, जैसे कि एग्जाम्पल पे तौर पे आप ले लीजिए इंटीग्रेशन यूजर नाम से, या फिर जो भी नाम देना चाहते हैं वो। और उसका अपने पास अपना एक परमिशन सेट होता है जिसके थ्रू उसको एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। उसका यूजर नेम और उसका पासवर्ड यहाँ पे रहता है। ग्रैंड टाइप आपने पासवर्ड ही रखना है। यूजर नेम जो करंट, अभी जब मैं रिक्वेस्ट फॉर्म कर रहा हूँ, जैसे अभी आपको हमने बताया कि आपके पास क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट है, यूजर नेम पासवर्ड भी आ चुका है। तो अब हम ये चार चीजें क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट यूजर नेम पासवर्ड, क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट आपको यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, आई जस्ट कॉपी क्लाइंट आईडी, मैं क्लाइंट आईडी कॉपी कर लेता हूँ। क्लाइंट आईडी, ये है मेरा क्लाइंट आईडी। और ये है मेरा कंज्यूमर सीक्रेट। सो क्लाइंट सीक्रेट या कंज्यूमर सीक्रेट, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो जब हम रिक्वेस्ट फॉर्म कर रहे हैं, अब हम इस एंड पे आ जाते हैं, यहाँ का काम खत्म हो गया, अब जैसे आकाश के एंड पे जाते हैं। तो यूजर के पास क्लाइंट आईडी है, क्लाइंट सीक्रेट है, यूजर नेम है, पासवर्ड भी है, और अब वो एक रिक्वेस्ट फॉर्म कर रहा है। तो रिक्वेस्ट में कौन कौन सी एंटिटीज आती हैं, देखिए वही चीज, क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट यूजर नेम पासवर्ड, और इसके अलावा एक चीज और होता है, वो होता है ग्रांट टाइप। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पे लिस्ट आउट करके दे रहा हूँ। ग्रांट टाइप पासवर्ड ही रखना है आपने, हालांकि इसके और फॉर्म्स होते हैं, बट यहाँ पे जो फ्लो हम यूज कर रहे हैं, अथोराइजेशन फ्लो बोलते हैं। वो अथोराइजेशन फ्लो का नाम है यूजर नेम पासवर्ड, जहाँ अथोराइजेशन किया जा रहा है बाय द यूज ऑफ यूजर नेम पासवर्ड। यही सेम चीज आपने डेटा लोडर्स के साथ भी यूज करी थी। डेटा लोडर जब आपने पढ़ा था तब भी हमने यूजर नेम और पासवर्ड को यूज किया था। वहां भी हमने यूजर नेम पासवर्ड फ्लो ऑफ ऑथराइजेशन यूज किया था। आप कोई भी ऑपरेशन करने जाते थे तो इट वुड आस्क यू फॉर दिस, राइट। तो आपने पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यहाँ पे इस्तेमाल किया था, जहाँ आपने यूजर नेम और पासवर्ड डाला था। अभी आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, पासवर्ड में सिर्फ पासवर्ड था, देखो मैं आपके सामने डालता हूँ, या पासवर्ड में कुछ और भी था? जैसे ये मेरा यूजर नेम है, आई जस्ट हैव कॉपीड एंड पेस्टेड आउट ओवर हियर। ठीक है, और ये है वो पासवर्ड जिससे मैं लॉगिन करता हूँ, और लॉगिन डॉट सेल्सफोर्स मैं लॉगिन कर रहा हूँ, बट इट वुड गिव मी द एरर। ये एरर आएगा, चेक योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। स्टिल मतलब आई वाज सप्लाइंग द करेक्ट क्रेडेंशियल्स, स्टिल यहाँ पे ये मुझे लॉगिन नहीं करने दे रहा है। क्या रीजन है इसका, बता सकता है कोई, किसी को याद है? पासवर्ड प्लस सिक्योरिटी टोकन चाहिए था। एग्जैक्टली, वेरी गुड भाग्यश्री, एब्सोल्युटली स्टनिंग। पासवर्ड इज नॉट जस्ट द पासवर्ड, इट कंटेन्स पासवर्ड प्लस सिक्योरिटी टोकन। और वो सिक्योरिटी टोकन हमने कैसे ऑब्टेन किया था, यू जस्ट हैव टू गो टू माय सेटिंग्स, ठीक है, एंड देन गो टू द पर्सनल्स एंड रीसेट माय सिक्योरिटी टोकन। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन टू दिस रीसेट माय सिक्योरिटी टोकन। आपका नया सिक्योरिटी टोकन इस ईमेल आईडी पे भेजा जा चुका है। ठीक है, तो हम क्या करते थे, व्हाट वी डू एट दैट टाइम, इफ यू रिमेंबर, लेट मी वन सेकंड ट्राई टू मेक दैट लॉगिन। व्हाट वी डू वाज, आई वॉन्टेड टू इंसर्ट, फॉर दैट आई वॉन्टेड टू गेट ऑथेंटिकेटेड, तो मैं पहले पासवर्ड एंटर करता था। जैसे कि ये मेरा पासवर्ड है, आई वुड एंटर दिस पासवर्ड, पासवर्ड फॉलोड बाय सिक्योरिटी टोकन। आई वुड जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट इट आउट। नाउ इफ आई वुड ट्राई टू मेक अ लॉगिन, तो ये हमको अलाउ करता था। तो ये जो लॉगिन सक्सेसफुल, एज यू कैन सी यहाँ लिख के आ चुका है लॉगिन सक्सेसफुल। चलिए छोड़िए। तो दिस फ्लो इज कॉल्ड एज, दिस टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन फ्लो, ये जो आपने देखा अभी, इसको बोलते हैं यूजर नेम पासवर्ड फ्लो। तो यहाँ पासवर्ड इज नॉट जस्ट द पासवर्ड, इट इज पासवर्ड प्लस सिक्योरिटी टोकन। ठीक है, इसको कैसे बाईपास करते हैं उसके बारे में मैं आ रहा हूँ, इसलिए मैं आपको कुछ ये जो मैंने रिवाइज करवाया उसकी वजह है अभी। चलिए, तो ये हमारे पास में सारी चीजें अवेलेबल है। वी नो द यूजर नेम, वी ऑल्सो नो द पासवर्ड। जो ऑथेंटिकेशन फ्लो हम यूज कर रहे हैं उसको ग्रैंड टाइप बोलते हैं, ग्रैंड टाइप है पासवर्ड। यूजर नेम आ चुका है, पासवर्ड ये रहा हमारा। सारी चीजें फॉर्मुलेट करके एक डॉक्यूमेंट, ये मेरा तरीका है, हाँ। मैं यूजुअली ऐसा काम करता हूँ, मैं पहले एक डॉक्यूमेंट करता हूँ, उसके बाद क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट, रीडायरेक्ट यूआरएल जो है वो ऑब्वियसली हमने वो पहले ही कर रखा है। इसके बाद अब ये रिक्वेस्ट पे आप चलो। ठीक है, ये है वो रिक्वेस्ट जो मुझे पोस्टमैन को सेंड करनी है। अब मैं आता हूँ पोस्टमैन पे। पोस्टमैन पे, जैसे अब हम क्लाइंट साइड पे काम कर रहे हैं, हाँ, हम आकाश के एंड से काम कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको
क्या चाहिए, आप ये सारी चीजें भेज रहे हो, मतलब यू आर सेंडिंग, यू आर फॉर्मिंग अ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट आप किसको दे रहे हो? अथोराइजेशन सर्वर को। अथोराइजेशन सर्वर तक पहुंचने के लिए आपको पोस्टमैन का आप यूज कर रहे हो यहाँ। तो पोस्टमैन का मतलब अथराइजेशन सर्वर तक पहुंचने के लिए भी एक यूआरएल होता है। कोई भी चीज जो ऑनलाइन अवेलेबल है उसका अपना एक यूआरएल है। देखिए ये है वो यूआरएल। ठीक है, ये क्या है? ये एक यूआरएल है। ये यूआरएल किसका है? जैसे आप बोलते हो www.google.com, ये यूआरएल हो गया गूगल तक पहुंचने का। www.makemytrip.com, ये यूआरएल क्या हो गया? मेक माई ट्रिप तक पहुंचने का। तो अथोराइजेशन सर्वर भी तो एक एप्लीकेशन है जो कि ऑनलाइन क्लाउड पे मौजूद है। अगर आपको इस तक पहुंचना है तो भाई इसका भी तो कोई यूआरएल होगा ना। यस ऑफ कोर्स देयर इज अ यूआरएल। कौन सा यूआरएल है? HTTPS login.salesforce.com services OAuth2 टोकन, ये इसका यूआरएल है। इसके साथ इस यूआरएल के साथ अलोंग विद दिस यूआरएल, बस इतना ही नहीं, अब देखो थोड़ा गौर करो। HTTPS login.salesforce.com services OAuth टोकन, यहां तक यूआरएल है। ये किसका यूआरएल है? अगर मैं आपसे अभी जो हमने डिस्कस किया, यू जस्ट हैव डिस्कस दिस। इसलिए देखो मैं आज थोड़ा स्लो हूं और स्टेप बाय स्टेप हूं, ताकि आपको हर चीज समझ में आए। यहां तक ये जो यूआरएल है, ये किसका यूआरएल है? अथोराइजेशन सर्वर का। ये आपको गूगल तक पहुंचना है तो आप www.google.com करोगे। मेक माई ट्रिप के लिए आप www.makeMyTrip.com करोगे। अथोराइजेशन तक सर्वर तक पहुंचने के लिए आप क्या करोगे? क्योंकि अभी जो जो भी डेटा हमारे पास ये वाला अवेलेबल है, ये जो डेटा अवेलेबल है, जैसे हमने स्टेप्स बात की कि जब आपके पास में, आकाश के पास में, क्लाइंट के पास में ये चारों एंटिटी आ जाती हैं, अब वो उसको एक रिक्वेस्ट फॉर्म करता है, तो वो रिक्वेस्ट किसको भेजेगा? अथोराइजेशन सर्वर को। रिक्वेस्ट में ये सारी चीजें होनी चाहिए। भाई हमने ये सारी चीजें कलेक्ट कर ली, सारी चीजें कलेक्ट कर ली डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में बाकायदा। हमारे पास क्लाइंट आईडी मौजूद है, क्लाइंट सर सीक्रेट मौजूद है जो हमको कनेक्टेड ऐप से मिल गया, यूजर नेम और पासवर्ड मौजूद है, ग्रांड टाइप हम जानते हैं, पासवर्ड रखनी है हमको। अब ये आपको ये सारी चीजें किसे प्रोवाइड करनी है? अथोराइजेशन सर्वर को। कैसे दोगे? कैसे दोगे? तो अथोराइजेशन को सर्वर तक देने के लिए आपको उसका यूआरएल और इसके आगे में ऐड करना है प्लस प्लस ऑल दिस वॉट एवर। मैं वही कर रहा हूँ। तो ये कोई बहुत भारी चीज नहीं है एक्चुअली, जिस तरह से अगर ये समझाया जाता है उस पर डिपेंड करता है। तो यहां से लेके यहाँ तक, मुझे भी चाहिए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया आपका अथोराइजेशन सर्वर का यूआरएल। एक बार फिर से इसको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया आपका अथराइजेशन सर्वर का यूआरएल, टोकन तक। उसके बाद में फिर देखो, कभी भी यूआरएल में कोई पैरामीटर देना होता है ना तो क्वेश्चन मार्क देते हैं। हमने भी दिया था, जैसे आपने आईडी सप्लाई करी, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद बाकी का जो है वो है कि अब आपको क्या देना है। यहाँ से लेके ये पूरा जो भी है यहाँ, ये पूरा ये है पैरामीटर। उसका तरीका ये होता है कि आपने क्वेश्चन मार्क पुटअप करना है। अब उसमें चीजें डालनी है, ग्रैंड टाइप, पासवर्ड, पासवर्ड एंड यूजर नेम। ग्रैंड टाइप पासवर्ड मतलब एक एक एंटिटी समझो। ग्रैंड टाइप, पहले ग्रैंड टाइप क्या है? पासवर्ड। एंड दूसरी एंटिटी यूजर नेम। यूजर नेम जो भी रहेगा, ये मैं कर रहा हूँ, इसमें एडिटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो बाद में मैं सब हटाऊंगा, स्पेस थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा मेरा, बट आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से आपको कर देता हूँ। थोड़ा सा काम बढ़ेगा मेरे लिए, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये इतनी एंटिटीज हैं जो मैं इसके साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले ग्रैंड टाइप है। ग्रैंड टाइप की वैल्यू दी मैंने पासवर्ड। दूसरा यूजर नेम, तो यूजर नेम हमने पहले से फाइंड आउट करके रखा है। ये देखिए, ये रहा यूजर नेम, ये रहा यूजर नेम। तो ये मैंने यूजर नेम को यहाँ पे इससे रिप्लेस कर देना है। थोड़ा सा केयरफुली करें वरना गलतियां होती हैं। ठीक है, पासवर्ड। अब पासवर्ड पे आता हूं मैं। तो पासवर्ड है ये, पासवर्ड है ये ये डाल दिया मैंने पासवर्ड। ठीक है, ये डाल दिया मैंने पासवर्ड। एंड छोड़ देना, एंड ना कर, एंड को ओवरराइट ना कर। एंड क्लाइंट आईडी। चलिए, अभी एक बात और है, मैं इसमें आ रहा हूँ वापस, पहले इसको मुझे कंप्लीट करने दीजिए। क्लाइंट आईडी। सो क्लाइंट आईडी की वैल्यू को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, एंड को छोड़ के क्लाइंट आईडी।
उसके बाद में अगली चीज है क्लाइंट सीक्रेट। तो क्लाइंट सीक्रेट में ये वाली की है, ये आपने डालनी है यहाँ पे। सो आई वुड हैव पुट दिस ओवर हियर। एंड का ध्यान रखें हर बार। रीडायरेक्ट यूआरएल, तो रीडायरेक्ट यूआरएल जो है वो मैंने निकाल के रखा है, लाइक इट इज, यहीं कहीं लिखा था मैंने, नहीं लिखा था, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं लिखा था तो अभी ले लेते हैं। तो रीडायरेक्ट यूआरएल जो है वो होम का दे रहा हूँ मैं। सो ये मैंने कॉपी कर लिया, दिस इज माय रीडायरेक्ट यूआरएल होम पे, होम टैब का, एंड दैट्स आई वुड बी गोइंग टू पेस्ट इट आउट अराउंड हियर। ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज। या फिर आप चाहें तो सिर्फ यहाँ तक भी दे सकते हैं, ये होम और होम पेज पे हटा सकते हैं। चलिए इसको सेव करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेशन है, एक कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि जो अथराइजेशन फ्लो, जो आप यूजर नेम पासवर्ड अथराइजेशन फ्लो आप यूज कर रहे हैं, इसमें पासवर्ड सिर्फ पासवर्ड नहीं होता है। पासवर्ड कंटेन्स टू थिंग्स, पासवर्ड प्लस योर एक्सेस टोकन। उसको कैसे हासिल करते हैं वो भी हमने जस्ट अभी देखा कि हाउ वुड यू रिसीव दैट सिक्योरिटी टोकन, नॉट एक्सेस टोकन, सिक्योरिटी टोकन। तो इसमें एक कॉम्प्लिकेशन ये होता है, कॉम्प्लिकेशन नहीं कह सकते, मुझे ऐसा कहना चाहिए कि दो सिनेरियोज होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप क्या प्रेफर करते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रेफर करती है, आपकी पॉलिसीज क्या है। अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे आकाश, आकाश आज अगर इसे लॉगिन कर रहा है तो आकाश को ये सिक्योरिटी टोकन यूज करना पड़ेगा। और अगली बार अगर आकाश आते हैं या भाग्यश्री या पल्लवी या राहत में से कोई भी आता है तो उनको दूसरा सिक्योरिटी टोकन। तो ये क्या हो गया, एक स्टेप सिक्योरिटी की ज्यादा है कि हर बार जब एक यूजर लॉगिन करना, भले ही मेरा यूजर नेम पासवर्ड वही है, मैंने आपको दे दिया, आप सभी को मैंने यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया, लेकिन आप में से हर कोई जब भी लॉगिन करेगा आपको एक सिक्योरिटी टोकन लगेगा। वो डिपेंडेंसी मैं अपने ऊपर रखना चाहता हूँ कि जैसे आकाश के पास ये सारी चीजें अवेलेबल है, मान के चलिए, ठीक है, समझो इसको। आकाश को हमारा यूजर नेम और पासवर्ड ये आप सभी को पता है, ये आप सभी को पता है। लेकिन आकाश अगर आज लॉगिन करता है तो आकाश को चाहिए एक सिक्योरिटी टोकन। उसके लिए आकाश फिर मुझे पिंग करेगा कि भाई मैं लॉगिन करके वो चेक कर रहा हूँ, कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी दैट सिक्योरिटी टोकन। मैंने कहा ठीक है, ऑल राइट। सेकेंड टाइम अगर भाग्यश्री है, भाग्यश्री इज अ सेपरेट यूजर, उनके पास भी ये सारी चीजें अवेलेबल है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, बट देन अगेन भाग्यश्री चाहती है कि वो लॉगिन करे तो वो सिक्योरिटी टोकन उनको भी लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आई एम फॉर्मिंग एन डिपेंडेंसी, कि भले ही मैं आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड दे दे रहा हूँ, स्टिल इफ यू वुड रिक्वायर टू एक्सेस विदाउट सिक्योरिटी टोकन आप नहीं कर सकते, बिकॉज पासवर्ड शुड बी पासवर्ड प्लस यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा सिक्योरिटी टोकन को, ये वाला। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट दिस डिपेंडेंसी टू बी प्रेजेंट और not। पहला केस, तो मैं आपको दोनों बातें सिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर आप इस इंटीग्रेशन को इस तरह से चाहते हैं, अगर आप इसको इस तरह से चाहते हैं तो फिर यस ऑफ कोर्स, भले ही आप ये सारी चीजें सप्लाई कर दें, आपको एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे उनको सिक्योरिटी टोकन भी देना पड़ेगा। तो फिर उनका पासवर्ड सिर्फ पासवर्ड नहीं रहेगा, पासवर्ड प्लस सिक्योरिटी टोकन रहेगा, पहली चीज। दूसरा, अगर आप ये डिपेंडेंसी नहीं चाहते, यू वांटेड योर users, your clients, your stakeholders to test this independently without any requirement of this access token, security token, whatever it is, तो इसके लिए हमको ना सेल्सफोर्स में एक छोटी सी सेटिंग करनी पड़ती है। अगर आप सिर्फ चाहते हो कि सिर्फ पासवर्ड से काम हो जाए, पासवर्ड के साथ हमको ये जो हमारा सिक्योरिटी टोकन जनरेट हुआ है ये देने की जरूरत ना पड़े, तो इसके लिए आपको सेल्सफोर्स में एक छोटी सी सेटिंग करनी पड़ती है। अच्छा, ये आप डेटा लोडर के टाइम पे भी कर सकते थे, लेकिन मैंने उस वक्त नहीं बताया क्योंकि इसका एक प्रॉपर वक्त होता है डेटा लोडर के टाइम पे। अच्छा, मैं अगर वो बता देता तो फिर आपको इस चीजें पता ही नहीं चलती थी, है ना। ये जो सेटिंग मैं अभी करने जा रहा हूँ, अगर ये हम कर देते हैं तो उसके बाद डेटा लोडर में भी हमको पासवर्ड प्लस सिक्योरिटी टोकन डालने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड से काम चल जाता है। तो वो सेटिंग क्या है आइए देखते हैं। तो इसके लिए पर्टिकुलरली सबसे पहले जो ये यूजर है इसकी प्रोफाइल पे चेंज करना है। तो ये जो यूजर है हमारा, ये एडमिन यूजर है। सो आई विल गो टू द सेटअप मेनू फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, एंड देन मैं यूजर्स में जाता हूँ,
और उस यूजर को फाइंड आउट करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि रियल टाइम में एक इंटीग्रेशन यूजर होता है, इसके लिए एक डेडिकेटेड यूजर होता है। अभी नहीं है हमारे पास तो एक ही सेल्सफोर्स लाइसेंस था जब हमने ये सारी चीजें पढ़ी। इस ऑर्गेनाइजेशन में दो सेल्सफोर्स लाइसेंस मिलते हैं, एक तो कंज्यूम हो जाता है, बचता एक है। तो उसमें आप क्या क्या कर लोगे, है ना। तो वो चीजें उस तरह से नहीं, लेकिन मैं आपको कम से कम ऐसे तो समझा ही सकता हूँ कि देखिए रियल टाइम में एक इंटीग्रेशन यूजर होता है, उसके पास भी सेल्सफोर्स लाइसेंस होता है, लेकिन उसको या तो प्रोफाइल लेवल से और या फिर परमिशन सेट लेवल से उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए खैर। सो अभी जो हमने जो आईडी यूज करी है वो तो ये वाला यूजर है ना, और उसको सिस्टम एडमिन प्रोफाइल है। तो मैं इस प्रोफाइल में जाके वो चेंजेस कर देता हूँ। सो इसके लिए आपको जाना है लॉगिन आईपी रेंजेस पर। ठीक है, जो कि सबसे लास्ट में होता है, लॉगिन आईपी रेंजेस। यहाँ पर आप न्यू करिए उसको, एंड हियर यू वुड जस्ट हैव टू एंटर 0.0.0 टू 255। अब ये क्या है, जिनको नेटवर्किंग का आइडिया है, जिसको नहीं है वो थोड़ा सुन ले दोनों। 0.0.0 is the minimum IP, so the maximum it could be 255.255 आईपी की जो रेंज है। अब इसका मतलब ये होता है कि यू आर अलाउइंग एनी आईपी बिटवीन दिस रेंज। सो वंस यू कमिट दिस 0.0.0.0 से लेकर एंड आईपी एड्रेस 255, 255, 255, मतलब कोई भी यूजर, कोई भी आईपी। What are the IP addresses, by the way? IP address is Internet Protocol. So IP is like, every system has an IP. मैं अगर ये थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि आकाश का सिस्टम है, ये आकाश का सिस्टम है। सो आकाश के सिस्टम में what is the IP address of आकाश system? So this is the IP 192.168, 1 and 17. Now see 192.168, 192.168.1.7, ये इस रेंज के अंदर ही है। रेंज क्या दे दे रहा हूँ, रेंज दे दे रहा हूँ कि भाई कोई भी आईपी एड्रेस 000 से लेके 255 तक कोई भी आए वो लॉग इन कर सकता है। तो ये आकाश का सिस्टम है, थोड़ी देर के लिए आप मान के चलें आकाश के सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.1.7, और ये इस रेंज के अंदर है। तो दैट्स व्हाई इट इज अलाउइंग यू। तो फिर आपको एक्सेस टोकन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये देखो, ये अपने लेवल पे कभी ये डिसीजन मत लेना दोस्त। ठीक है, ये भले ही मैं आपको सेटिंग सिखा दे रहा हूँ, लेकिन ये डिसीजन आपको अपने लेवल पे नहीं लेना है। ये ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी का डिसीजन है। सेल्सफोर्स में सिक्योरिटी के 5 लेवल्स होते हैं, सबसे ऊपर का लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल सिक्योरिटी। इसके बाद आता है एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी, या फिर यूजर लेवल सिक्योरिटी बोल दो, फिर थर्ड है एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी, फोर्थ कुड बी ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी, 5 कुड बी फील्ड लेवल सिक्योरिटी, रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी, 5 6 जितने भी लेवल्स आप बोलो। ये जो मैंने आपको बताया लॉगिन आईपी रेंजेस फॉर्म करना इज द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल सिक्योरिटी, कि इस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है माय ओन कंपनी वगैरह वगैरह, कोई भी एक्सेस कर सकता है इसको विदाउट हैविंग अ सिक्योरिटी टोकन। विदाउट हैविंग अ सिक्योरिटी टोकन एनीवन कुड फॉर्म अ रिक्वेस्ट। ये बहुत बड़ा डिसीजन है, ये आपको अपने लेवल पे नहीं लेना। यू शुड हैव रिटर्न कंसर्न फॉर दिस। ठीक है, ये याद रखो, हालांकि आपको आपके नॉलेज के लिए ये जानना है। चलो, सो वंस आई हैव सेट दिस, अब मुझे जब मैं यूजर नेम एंड पासवर्ड फ्लो यूज करूंगा, तो पासवर्ड वुड बी द ओनली पासवर्ड कहीं से भी। फिर चाहे आप डेटा लोडर से लॉगिन करना ट्राई कर रहे हो, वो भी एक ऑन प्रेमाइस एप्लीकेशन है, उसे भी आपने इंस्टॉल करना पड़ता है, या फिर आप पोस्टमैन से लॉगिन कर रहे हो, ये भी एक ऑन प्रेमाइस एप्लीकेशन, इसे भी इंस्टॉल करना पड़ता है। तो फिर आपको पासवर्ड के साथ सिक्योरिटी टोकन देने की डिपेंडेंसी नहीं रहती है। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ लिख के भी रखा है सेकंड नंबर पॉइंट पे, जो कि मैं कह रहा था कि मैं बताता हूँ आपसे भी, ये ले जाने से नेक्स्ट। अब ये सारी चीजें जब हमारी तैयार हो जाती है ना, विच वी हैव क्रिएटेड ऑल द थिंग्स, तो पहले हमें रिक्वेस्ट फॉर्म करनी है। अब मैं इस रिक्वेस्ट को कहना चाहिए कि सही तरह से कर देता हूँ। सो जरा सा भी इसमें कुछ गलती हुई कि आपका रिक्वेस्ट इनवैलिड हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा केयरफुली यहाँ पे काम कर रहा हूँ। उसके बाद आता है हमारा ऑथराइजेशन सर्वर का आई URL। चलो, तो रिक्वेस्ट हमारी ये बन चुकी है।
हाँ, मेथड हमेशा पोस्ट ही लेना, बताता हूँ मैं, डोंट वरी, आई जस्ट कॉपी दिस, मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ। और अब हम चलते हैं पोस्टमैन पे। तो पोस्टमैन का सबसे पहला काम क्या होगा? पोस्टमैन का सबसे पहला काम है आपकी ने ये जो रिक्वेस्ट है अथोराइजेशन सर्वर की रिक्वेस्ट तक पहुंचाना। अथोराइजेशन सर्वर तक रिक्वेस्ट पहुंचाना। अभी आप स्टेप नंबर 1 की बात कर रहे हो। ये बाकी डेटा लेना देना वो सब हम बाद में आएंगे। स्टेप नंबर 1, भाई ये यूजर इज अथराइज टू कनेक्ट विद दिस, और ये फॉर्म करना कौन करेगा? अथराइजेशन यूजर। चलिए, तो उस पर हम काम करें ना, वी आर वर्किंग ऑन स्टेप नंबर 1। ओके, सो यहां से मैं सिलेक्ट करूंगा पोस्ट मेथड, बिकॉज आई एम पोस्टिंग समथिंग। यहाँ पे चाहिए वो पूरा यूआरएल। तो अभी हमने जस्ट कॉपी किया, पेस्ट किया, ठीक है। ये है पूरा यूआरएल। अभी आप इसको ध्यान ध्यान से देखो, अगर आप तो इसमें देखो, आप सारी चीजें मिल रही है। ग्रैंड टाइप की वैल्यू पासवर्ड आ गया, यूजर नेम का वैल्यू ये आ गया, पासवर्ड का वैल्यू ये है, और पासवर्ड के साथ हमको अथराइजेशन कोड नहीं देना है, बिकॉज हमने एक लॉगिन आईपी रेंजेस की एक सेटिंग परफॉर्म कर दी है, जिसकी वजह से कोई भी रेंज का आईपी नाउ कुड हैव एन इंटरेक्शन। उसके बाद ये क्लाइंट आईडी डाल दी मैंने, ये क्लाइंट सीक्रेट और रीडायरेक्ट यूआरएल भी डाल दी। इतना सब करने के बाद अब मैं सेंड करूंगा, ये जाएगा अथोराइजेशन सर्वर को हिट करेगा, ठीक है। ये जाके अथोराइजेशन सर्वर को हिट करेगा, और आप देख सकते हैं कि अथोराइजेशन सर्वर से रिस्पॉन्स वापस आया। क्या मिला? सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेस टोकन। ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यही चीज जो मैं आपको बता रहा था कि अथोराइजेशन सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा, जिसमें साथ में क्या रहेगा? एक्सेस टोकन। ये है कंप्लीट रिस्पॉन्स जेसन के फॉर्म में, आप देख सकते हो। एक्सेस टोकन, इंस्टेंस यूआरएल, आईडी, टोकन टाइप, इशूड एट सिग्नेचर, ये पूरा रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका एक्सेस टोकन। अब जब ये आपको मिल जाता है, ये आपको मिल जाता है, तो अगली चीज, अब आप उस एपीआई को हिट कर सकते हो। अब आप उस एपीआई को हिट कर सकते हो। तो वो जो एपीआई हमने बनाई है, जो एपीआई हमने बनाई है वो ये है, ठीक है। ये है, तुम जब इसको हिट करते थे वर्क बेंच से, तो तुम यही ये लिखते थे। ये तो लिखना ही है, ये तो लिखना ही है। अभी इसके पहले का भी यूआरएल चाहिए मुझे। अभी कैसा है, इससे पहले का यूआरएल वो ऑटोमेटिकली ले लेता था, लाइफ तो बड़ी आसान थी हमारी। इतना तो है ही है। इसके पहले क्या, इसके पहले क्या, वो अभी हम यहाँ पे, अब हम पूरा यूआरएल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अभी हम पूरा यूआरएल, तो चलिए अब मैं इसके बाद में वापस चलते हैं पोस्टमैन पे। अब मैं एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ। इसको छोड़ दो, आप इसको एज इट इज छोड़ दो, यहाँ पे नया टैब ओपन कर लो, ठीक है। यहाँ पर फिर से वही चीज रिपीट करेंगे, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग रहेगा। तो अभी आप जाइए अपनी अपने वेब सर्विस क्लास में। यहाँ पे जो वेब सर्विस बनाई है वो कौन सी मेथड यूज कर रहा है? गेट, ठीक है। तो गेट है, तो यहाँ भी आपको गेट ही यूज करना है, ठीक है। आ, देखिए, टोकन लेने के लिए पोस्ट रहेगा, इसके बाद में जो सेकंड टैब आपने आपने ओपन किया, वहां पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी, किस टाइप की एपीआई को हिट कर। और ये हम वर्कबेंच से भी किया करते थे। वर्कबेंच पे भी हम गेट, पोस्ट, पुट, पैच सिलेक्ट करते थे, बस। अब इसके इसके बाद की कहानी वही है, कुछ नया नहीं है। तो मैंने यहाँ पर आया, मैंने ये सिलेक्ट किया। अब मुझे यहाँ पे कंप्लीट यूआरएल चाहिए, कंप्लीट यूआरएल। तो कंप्लीट यूआरएल कैसे मिलता है? मतलब इतना तो हम जानते ही हैं, इतना तो हम जानते हैं, इसके पहले का कैसे मिलता है? तो उसके लिए एक, जो हमने यहाँ पर अभी जस्ट हैव पेस्टेड इट आउट हियर, रीडायरेक्ट यूआरएल जो मैंने लिया था, ये रहा। तो इसको मैं एक बार जरा सा कॉपी कर लेता हूँ, कहाँ तक? यहाँ तक, देखो, ठीक है। उसके आगे तो होम टैब है, मुझे होम पे नहीं जाना है ना। मतलब ये है मेरा, आई मीन टू से, ये है हमारा बेसिक यूआरएल, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का यूआरएल है, ठीक है। ये वो चीज है। तो यहाँ जाता हूँ मैं, आई वुड जस्ट गो टू दिस, इसको रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ तक 2 स्लैश आ गए। इसके बाद का तुम्हारे पास, तुम जानते हो इसके बाद का, इसके बाद का ये रहा आपका, राइट, जो आप इसके पहले भी आपने यूज किया है। सो आई वुड जस्ट वुड रिप्लेस दिस, ये। सो सर्विसेज, एपेक्स रेस्ट, और वो जो वेब सर्विस का नाम था, वेब सर्विस क्लास का नाम था अकाउंट सर्विस। ये बनता है हमारा रिक्वेस्ट यूआरएल, बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट यूआरएल वेब सर्विस। दैट आई वुड बी गोइंग टू पेस्ट इट आउट ओवर। यहाँ मैं उसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। बस कुछ नहीं, सेम चीजें, गेट, मेथड सिलेक्ट किया, यूआरएल डाला, जैसा कि आप
पोस्टमैन में करते थे। हाँ, पोस्टमैन में एक फैसिलिटी ये थी कि भाई इसके पहले का आपको डालना नहीं है। तो जब आप इसको ऑथेंटिकेट करते हो, आप जब पोस्टमैन को अलाउ करते हो, तो ये इसके इधर का जो यूआरएल है वो अपने आप ले लेता है। आपको उसके आगे का देखना है कि भाई एपेक्स रेस्ट और फिर जो वेब सर्विस का नाम है वो मेथड सिलेक्ट करनी, हिट करना है, बस, है ना। अब इसके आगे की प्रोसेस वही है। मैंने मेथड सिलेक्ट करी, पूरा यूआरएल डाल दिया, पूरा यूआरएल डाल दिया, और मैं हिट कर रहा हूँ सेंड बटन। सेशन एक्सपायर्ड। एक बार फिर से सेंड करता हूँ। अच्छा, हाँ हाँ, सेशन एक्सपायर्ड, मैंने गलत किया, इट वॉज माई मिस्टेक। सिर्फ इतना ही नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी। जब ये आप हिट कर रहे हो तो आपको अथराइजेशन पे क्लिक करना है। आई जस्ट फॉरगॉट, सॉरी यार। अथराइजेशन पे जाने के बाद में, हाँ, ये देखो यहाँ पे यू सी समथिंग, टोकन टाइप इज बियरर। तो दैट्स द रीजन व्हाई आई एम डूइंग दिस, हर चीज की वजह है। अथराइजेशन में जाइए, टाइप में जाइए, हियर यू हैव टू सिलेक्ट बियरर टोकन। मैंने क्या किया पता है आपको, मैंने गलती क्या की, मैंने डायरेक्ट रिक्वेस्ट सेंड कर दिया, एक्सेस टोकन तो भेजा ही नहीं। इस वजह से गलत हो गया वो, इस वजह से गलत हो गया। बियरर टोकन, और ये जो बियरर टोकन है इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू शुड बी आपका एक्सेस टोकन, जो कि मैंने नहीं दिया। दिस एवरीथिंग यू हैव टू कॉपी। हाँ, ये आप कॉपी करेंगे, आप यहां जाएंगे, एंड यू वुड पेस्ट इट आउट ओवर हियर। आप ठीक है ये। तो व्हाट वी डिड, मेथड सिलेक्ट किया, यूआरएल दिया, रिक्वेस्ट यूआरएल दिया, उसके बाद में अथराइजेशन में जाइए, बियर टोकन दीजिए, और जो आपका एक्सेस टोकन मिला है वो दीजिए, उसके बाद सेंड करिए। हम्म। और क्या छूट गया? और कुछ है जो मुझसे छूट रहा है क्या? इंस्टेंस यूआरएल, आई शुड डू वन थिंग। इंस्टेंस यूआरएल ये है, तो अगर आई वुड बी मेकिंग सर्टन मिस्टेक तो मुझे गलती मिलेगा। Instance URL is, I guess, is something which I'm making it wrong. हाँ, तो मैं इंस्टेंस यूआरएल गलत दे रहा था। दिस हैज टू बी गिवन फ्रॉम हियर। जो आपको यहाँ से इंस्टेंस यूआरएल मिलता है ना, ये आपको देना है। लेट मी मेक दैट्स करेक्शंस ओवर हियर एज वेल। ये मैं गलत दे रहा था। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज डोमेन नेम। यहाँ मैं डोमेन नेम दे रहा था, जबकि मुझे इंस्टेंस यूआरएल देना है। ये डिफरेंस था। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। यहाँ से दो एंटिटीज उठानी है आपको। एक तो इंस्टेंस यूआरएल उठाइए, इंस्टेंस यूआरएल को आप यहाँ पे पेस्ट करें, यहाँ पे आप पेस्ट करें इंस्टेंस यूआरएल। उसके बाद का वही है जो आपने वर्क बेंच में सीखा था, सर्विसेज, एपेक्स रेस्ट, और फिर जो भी आपकी वेब सर्विस क्लास का नाम। और आपका जो एक्सेस टोकन है, ये पर्टिकुलर एक्सेस टोकन, ये आपको पेस्ट करना है। you'll have to go to the authorization, select bearer token, और यहाँ पे जब ये दो चीजें हो जाएं फिर आप सेंड करें, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये जो वेब सर्विस हमने बनाई है, ये 5 अकाउंट की रिकॉर्ड दे रही है। तो यू कैन सी दिस, ये देखिए। और यहाँ भी वही चीज मिलती है आपको। इफ यू वांटेड टू सी, सो शो द रॉ रिस्पॉन्स, अगर मैं देखूं, देखो, ये वही है, जेसन ही है। और अभी जो मिल रहा है तुमको यहाँ पे, वो भी वही है, जेसन। सी, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स, अकाउंट, राइट। सो एवरीथिंग इज सेम। यूआरएल ये रहा, ये उसका आईडी है, डेटा का आईडी, है ना, ये डेटा का आईडी है बेसिकली। तो ये वही चीज है, मतलब ये रिस्पॉन्स जो मिल रहा है आपको, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ जेसन, आईडी, नेम, रेटिंग। आपको यही चीज यहाँ पर भी मिल रही है, आईडी, नेम, रेटिंग, इंडस्ट्री। ये रॉ रिस्पॉन्स है। यहाँ थोड़ा सा ये फोल्डर वोल्डर के टाइप में दिख जाता है, पोस्टमैन में ऐसा नहीं दिखता है, लेकिन जेसन के फॉर्म में तो दिखता है। सो दिस इज लाइक हाउ वी एक्चुअली परफॉर्म रियल टाइम टेस्टिंग विद द पोस्टमैन। और ये कैसे होता है? विद द कनेक्टेड ऐप, विद द कनेक्टेड ऐप। ये है सारा लॉजिक। तो आपने क्या करना है, जितने भी ये हमने, जितने भी बनाए, आई मीन टू से, जितनी भी वेब सर्विस बनाई है, ये जितनी भी बनाई,
ठीक है, ये सारी वेब सर्विस जो तुमको होमवर्क दिया था, होपफुली तुमने किया हो। इतने अगर तुम सही में कर लोगे, तुमको इंटीग्रेशन में कोई पीछे नहीं ला सकता। तो ये सारी वेब सर्विसेज जो आपने बनाई हैं और जो होमवर्क में दी गई, सबको आप पोस्टमैन से टेस्ट करें। और याद रखिए, जैसे आज आपने ये टेस्ट किया, कल कोई दूसरी टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको नया कनेक्टेड ऐप नहीं बनाना है उसके लिए। कनेक्टेड ऐप हमेशा एक ही बनता है, ठीक है। कनेक्टेड ऐप हमेशा एक ही बनता है। आप ये मत सोचिए कि आपको हर वेब सर्विस के लिए नया कनेक्टेड ऐप बनाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो कनेक्टेड ऐप आपने बनाया है, इसी की मदद से आप सारी वेब सर्विसेज को चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब हर बार आपका कंज्यूमर की एंड कंज्यूमर, अच्छा ये हर बार ही पूछता है, तो कंज्यूमर की और कंज्यूमर सीक्रेट्स जो हैं, दे यूजुअली आर सेम, और आई गेस चेंज हो जाते हैं, जो भी है। एक्स एक्स नहीं, ये सेम ही रहता है। तो आप एक ही कनेक्टेड ऐप की मदद से ये सारी चीजें कर सकते हो। आपको अलग अलग कनेक्टेड ऐप्स नहीं बनाना, एक कनेक्टेड ऐप, और उसमें जो कंज्यूमर की कंज्यूमर सीक्रेट है, उसके हिसाब से आप सब कुछ टेस्ट कर सकते हो। तो ये जितनी भी वेब सर्विसेज तुमने बनाई, सारी क्लासेस को टेस्ट करो वाया पोस्ट में। अगर तुम ये सीरियसली कर लोगे तो फिर तुमको कोई दिक्कत नहीं जानी है इसमें, ठीक है। स्टेप्स एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले आपको आपका जो ये वाला यूआरएल होता है, मतलब रिक्वेस्ट यूआरएल, वो फॉर्म करना है। तो रिक्वेस्ट यूआरएल में क्या क्या आता है? क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, यूजर नेम, पासवर्ड, ग्रांट टाइप, ये सारी चीजें, ये है वो सारी चीजें, ठीक है। हाँ, और सब साथ ही साथ ऑफकोर्स मैं जो बोलना भूल गया वो था अथराइजेशन सर्वर का यूआरएल। तो वो तो सबसे पहले वही होता है, अथराइजेशन सर्वर का यूआरएल, उसके साथ में क्लाइंट आईडी, उसके साथ क्लाइंट सीक्रेट, उसके साथ यूजर नेम, उसके साथ पासवर्ड, उसके साथ ग्रांट। इतनी सारी चीजें जब आप देते हैं तो ये बनता है आपका रिक्वेस्ट यूआरएल या अथराइजेशन। उसको सेंड करने के बाद में ये सारा जाता है अथराइजेशन सर्वर के पास। उसको वो पर्टिकुलर और के साथ में मैच करके देखता है कि भाई ये जो क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, यूजर नेम, पासवर्ड आया है, वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। जब उसे सारी चीजें सही मिलती है तो वो अपना रिस्पॉन्स भेजता है, जिसमें एक्सेस टोकन होता है और बाकी चीजें। एक्सेस टोकन और इंस्टेंस यूआरएल, दो चीजें हमारी काम की है। इसके बाद हम, अब हमको जब ये मिल गया, तो इसका मतलब अब हम ये पर्टिकुलर आपका यूजर इस वेब सर्विस से कनेक्ट हो सकता है। तो उसके लिए वो क्या करेगा? रिक्वेस्ट फॉर्म करेगा, साथ में एक्सेस टोकन भी देगा। तो रिक्वेस्ट फॉर्म करेगा, तो ये है वो रिक्वेस्ट, ये है वो रिक्वेस्ट, है ना। इसके लिए इसको ये वाला यूआरएल लगेगा, तो ये यूआरएल आप यहाँ से ले लें, इंस्टेंस यूआरएल लें, ना कि आपका डोमेन नेम वाला मत लीजिए, वो एरर आ रहा है। तो ये वाला इंस्टेंस यूआरएल यहाँ पे लीजिए, कॉपी पेस्ट करिए, बाकी का आपको पता ही है, स्लैश सर्विसेज स्लैश एपेक्स रेस्ट स्लैश आपका जो वेब सर्विस जो भी है। अगर इसमें पैरामीटर देना है तो हम वो भी जानते हैं कि पैरामीटर इस तरह से दिया जाता है आईडी इक्वल्स टू ऐसा, ये भी तुमने दे रखा है, और ये सब लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स में। उसके बाद में आप अथराइजेशन टैब पे जाएं। टोकन जो है, बहुत अलग अलग तरह की टोकन्स होती हैं, ठीक है। आपने बियरर टोकन सिलेक्ट करना है, और ये जो एक्सेस टोकन आपको रिसीव हुआ है, ये वाला, ये पूरा कॉपी करके यहाँ पेस्ट करें, हिट करें, रिस्पॉन्स ले लें। बस इतना ही है, ये ज्यादा नहीं, ठीक है। सो डू दिस एंड लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फॉर अ फ्यू डिस्कशंस।